Good morning, students. Today I will discuss the 11th chapter of history, the making of national movement 1870 to 1974. In this chapter I will discuss the emergence of nationalism, Arms Act, Vernacular Press Act, Ilburg. Okay, students. After the revolt of 1857, the company rule was taken over by the British Queen. कंपनी का रूल इंडिया में खत्म हो गया था, ब्रिटिश क्वीन के पास इंडिया का चार्ज आ गया। So many changes were made, but still they harassed the people of India. The British conquest of territories and takeover of kingdoms, the decline of craft and the growth of industries, new industries, urban centers. These all are the part, ये सारे पार्ट थे जिनके की हरेसमेंट हुआ, लोगों का हरेसमेंट होने लगा। 1870 तक we were quiet, हम सब चुप थे। क्यों? क्योंकि 1857 में एक बहुत बड़ी डिफीट हुई थी इंडियंस की और एकदम खत्म कर दिया था सारे हमारे जो उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स थे। कुछ को पनिश कर दिया गया, कुछ को प्रिजन ऑफ करने के बाद किसी को जेल भेज दिया गया, किसी को मार दिया गया। उस सिचुएशन में सब कुछ खत्म हो गया था। बट 1870s आते आते लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस रेज होने लगे। द क्वेश्चंस वर, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom is it meant? The answer that gradually emerged was India was the pupil of India. All the people irrespective of class, color, caste, creed, language or gender. And the country, its resources and systems were meant for all of them. With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of people. And until this control was ended, India could not be for Indians. लोगों के मन में आने लगा कि ये देश किसका है, हमारा है या ब्रिटिशर्स का है, ये रिसोर्सेस किसके हैं, हमारे हैं या ब्रिटिशर्स के। इस क्वेश्चन का आंसर मिला, ये देश हमारा है, रिसोर्सेस हमारे हैं। लोगों के अंदर एक बार फिर इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म होने लगा। लोगों को लगने लगा कि कंट्री हमारा है, हम इसे लेंगे, ब्रिटिशर्स का नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, this consciousness began to be very clear stated by the political association formed after 1850, especially those that came into being in 1870 and 1880s. Okay students, खूब सारी political associations बनी और उन associations में लोग जुड़ते गए। लोगों को लगने लगा कि कंट्री हमारा है और ब्रिटिशर्स were exploiting us. That dissatisfaction with British rule intensified in the 1870 and 1880. The Arms Act was passed in 1878. 1878 में बेटा एक Arms Act पास हुआ। What was the Arms Act? The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, the Vernacular Act was passed. वर्नाकुलर एक्ट वाज पास। आर्म्स एक्ट पास हुआ कि कोई भी इंडियन अपने साथ आर्म नहीं रख सकता विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि लोग रिवोल्ट की पोजीशन में आ गए थे दोबारा। जो 1857 में उस हिस्ट्री को ब्रिटिशर्स रिपीट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए द आर्म्स एक्ट वाज फोर्स्ड ऑन इंडियंस। ओके, एंड सेकंड, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज also enacted in an effort to silence those who were critical of government. The act allowed the government to confiscate the assets of newspaper, including their printing press, if the newspaper published anything that was found objectionable. अब आर्म्स नहीं रखेंगे, न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसा आर्टिकल आप नहीं लिख सकते जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है। मीन्स कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते
वर्नाकुलर प्रेसेप्ट जब पास किया तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। लोगों को लगने लगा ना हम आर्म्स रख सकते हैं, ना हम एक दूसरे को अवेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारा किस तरीके से हरेसमेंट कर रही है। तो उस सिचुएशन में लोगों में गुस्सा फिर बढ़ने लगा, हरेसमेंट की फील आने लगी कि अब हम कैसे अपोज करेंगे। Got it everyone? In 1853 there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. This bill provided for the trial of the British or European person by Indians and sought equality between British and Indian judges in country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlighted the racial attitude of British in India. ओके, इल्बर्ट बिल लाया गया कि बेटा इंडियन जज और ब्रिटिशर्स जज इक्वल हैं और दोनों व्हाइट और ब्लैक मीन्स इंडियन और व्हाइट पीपल मीन्स ब्रिटिशर्स को ट्रायल कर सकते हैं, कोर्ट में उनके अगेंस्ट सुन सकते हैं कोई भी केस अगर आता है तो। बट ब्रिटिशर्स ने इसका अपोज किया कि ये बिल गलत है, इंडियन जजेस ब्रिटिशर्स को नहीं सुनेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर कोई केस आता है। इस तरीके का अपोजिशन लाया गया और उसको मान लिया गया। इल्बर्ट बिल जो था वो पास नहीं होने दिया। व्हाट इट एवरीवन, इससे पता चला कि ये किस तरीके से रेशियल डिफरेंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इट एवरीवन, देन द नीड फॉर ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन of educated Indian had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy deepened this desire. अब इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी थी उससे लोगों को लगने लगा कि नहीं ये सब जो गलत हो रहा है इसको रोकना है और उनमें और ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगे। The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. The early leadership, Dadabhai Nehru ji, Firozan Shah Mehta, Behruddin Tayyab ji, V.C. Banerjee, Surendranath Banerjee, Romesh Chandra Datta, S. Subramania Iyer. ओके स्टूडेंट्स, इन सब ने मिलकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप की। A retired British official A.O. Hume also played a part in bringing Indians from the various regions together. एक ब्रिटिशर्स भी थे बेटा, ऐसा नहीं था कि सारे ब्रिटिशर्स, कुछ जो एजुकेटेड ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी कई ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उनमें से एक थे, वन ऑफ देम वाज A.O. Hume। उन्होंने भी बहुत सारे डिफरेंट रीजन से, प्लेटफॉर्म से लोगों को इकट्ठा किया और कांग्रेस में एक्टिवली वर्क किया। अ नेशन इज मेकिंग, अब एक नेशन बनाने की उन्होंने कोशिश की। इट हैज ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इज द फर्स्ट 20 years was moderate. It demanded that Indians be placed in high position in government. For this purpose, it called for civil service examination to be held in India as well, not just in London. इंडियंस ने डिमांड की कि हमारे को भी हायर पोजीशन पे ले, क्योंकि पहले एक लिमिटेड पोजीशन तक इंडियन रह सकते थे, हाई पोजीशन पर इंडियन नहीं रह सकते थे। तो कांग्रेस के मॉडरेट थी कांग्रेस अपने स्टार्टिंग में। उन्होंने कहा कि नहीं ये हमें कुछ डिमांड्स है हमारी, जिसमें ये डिमांड थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को लिया जाना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डिमांड, अगर इंडियंस हायर पोजीशन पे रहेंगे तो क्या होगा, जो इंडियन वेल्थ है बाहर जा रही है वो भी रुक जाएगी। गॉट इट एवरीवन, और हम इंडिया के फेवर में डिसीजंस ले सकते हैं।
Second, the moderate leader wanted to develop public awareness about the unjust nature of the British rule. और जो ब्रिटिशर्स का अनजस्ट नेचर है, जो जस्टिस नहीं करते हैं, इनइक्वलिटी का है, उसके अगेंस्ट भी लोगों को अवेयर करना. ठीक है. एंड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, cutting military expenditure and more funds for irrigation. They demanded कि ज्यादा फंड इरिगेशन के लिए दिया जाए. Got it everyone? रेवेन्यू कम किया जाए, दूसरी चीजों को कम किया जाए और इरिगेशन में एग्रीकल्चर पर एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए. Got it everyone? In my next video I will discuss the other parts of the chapter. Okay students, have a nice day.